أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں کسی ایک کو جو جو کوئی ایک ہینڈ ریز کرے جو وقت پہ آ جاتا ہے، مطلب جو ہمیشہ وقت سے پہلے وقت پہ آ جاتے، تو وہ ان کو آپ اپنا ریپرزینٹیٹو بنا لیں، بلکہ چاہے وہ خود بھی اپنے کو والنٹیئر کر لیں، تو وہ سلام کا جواب دے دیں، تو بس مجھے یہ پتا چل جائے کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور ان کا جواب آپ سب کی طرف سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو کوئی بھی، ہمیں لگتا ہے کہ نفیسہ اگر آج کل زیادہ مصروف نہ ہو تو وہ کر سکتی ہے، ورنہ کوئی بھی اینی ون. تو آپ لوگ بہرحال خود ڈیسائیڈ کر لیجیے گا. آواز میری آ رہی ہے سب کو؟ جی السلام علیکم. جی استاد. وعلیکم السلام. آ رہی ہے، چلیں الحمدللہ. آپ دیکھ رہی ہیں آج اسکرین پہ جو آپ کو شو ہو رہا ہے کہ آج ہم لوگ کریں گے جینڈر یعنی جنس. جب بھی اسم آپ سوچیں گی تو آپ جیسے ہی اسم سوچیں آپ کے، کیونکہ کسی بھی اسم کو صحیح طرح سے پہچاننے کے لیے، جس سے آپ اس کا صحیح ٹرانسلیشن کر سکیں، صحیح طرح سے اس کو سمجھ سکیں، ظاہر ہے آپ کو استعمال تو نہیں کرنا ہے، اس پہ نہیں لے کے جائیں گے، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو صحیح سمجھ میں آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسم کو آپ 4 اینگل سے پہچانیں، جس میں سے اعراب الحمدللہ آپ نے 10 کلاسز میں کور کر لیا، اور آج ہماری 11th کلاس ہے جس میں ہم لوگ سیکنڈ ایسپیکٹ دیکھیں گے اس کا. چاروں آپ کو لائن سے یاد ہونے چاہیے. کیا؟ اعراب، جنس، عدد، وسعت. اعراب، جنس، عدد، وسعت. اعراب، جنس، عدد، وسعت. یہ اس طرح لائن سے آپ ان چاروں پوائنٹس کو یاد کر لیں، تو کبھی بھی پھر آپ بھولیں گے نہیں، اس میں سے کوئی ایک بھی ڈراپ نہیں ہوگا. تو آج ہم لوگ کریں گے جنس کا ٹاپک، جو کہ بہت آسان ہے. اس میں زیادہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ we will cover it in 3 classes. 2 کلاس میں آپ سمجھیں گے اور 3rd کلاس میں آپ کو پریکٹس دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ بتایا ہم نے شروع سے لے کے ایک بار چلیں گے، کیونکہ یہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ بہت کم ہے، تو جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہوگا وہ ہلکا سا آپ کو ریویژن اس کا ملتا ہی چلے گا. اسم کو 4 پہلو سے ہمیں پہچاننا ہوتا ہے. وہ پڑھ لیں آپ لوگ. یہ وہ 4 پہلو کیا ہے؟ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اعراب، جنس، عدد، وسعت. اس کے بعد کسی بھی لینگویج کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس کی پارٹس آف اسپیچ الفابیٹ سے شروع کرتے ہیں، کہ ہمیں الفابیٹس کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو کہ عربک میں کہتے ہیں حروف الہجا. یہ 28 ہے، اور حروف الہجا اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے. لفظ یعنی بامعنی الفاظ، جن کو کہ کلمات کہتے ہیں، ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. There are just 3 parts of speech in Arabic: اسم، فعل اور حرف. فعل تو آپ سمجھ گئے کہ ورب کو کہتے ہیں. حرف میں بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ، لیکن فی الحال آپ بس کنجنکشن اینڈ پریپوزیشن، یہ 2 چیزیں سمجھ لیں. مطلب وہ چیزیں جو کنجنکشن کیا ہے، وہ چھوٹے والے چیزیں، وہ چھوٹے والے الفاظ جو کسی 2 فریز کو جوڑے، 2 جملوں کو جوڑے، جیسے لیکن، اور، یہ سارے الفاظ کنجنکشن ہو گئے. اور پریپوزیشن جیسے آف، فرام، یہ ساری الفاظ جو ہیں یہ پریپوزیشن میں آ گئے. تو اس طرح کے چند اور آپ کو تقریباً 7-8 کیٹیگریز ملیں گی یہاں پہ حرف کی، جو کہ سب ہر حرف آپ ایک کلاس میں کور کر لیں گے. تو جس میں سے آپ، ہمیں لگتا ہے 2 کر چکی ہیں، حروف جر اور
حروف عطف if I'm not wrong. ٹھیک ہے، تو فعل آپ جانتی ہیں کہ ورب کو کہتے ہیں. اس کے بعد حرف آپ نے سمجھا کہ پریپوزیشن اور کنجنکشن مطلب چھوٹے والے حروف جو کہ جن کا کہ اپنا کوئی علیحدہ سے کوئی میننگ نہیں ہوتا. دے آر ہیلپنگ ٹو جوائن دا سینٹینسز یا فریز میں وہ نظر آتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب اسم کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. یعنی جو چیز فعل میں نہیں آئی، جو حرف میں نہیں آئی، وہ اسم میں چلی جائے گی. تو عربک میں اسم جو ہے ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے. تو سبحان اللہ، آپ جب 20 کلاسز کر لیں گی انشاءاللہ تعالی، 20 اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وی ول بی گوئنگ ویری سلو، تو آپ کو یہ اسم کی پوری کیٹیگری سمجھ میں آ جائے گی. اور جب آپ اسم کریں تو یاد آ جاتا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسما کا ہی علم دیا. سب سے پہلے علم کس کا دیا؟ اسما کا ہی علم دیا. اسی سنت پہ چلتے ہوئے ہم لوگ بھی پہلے اسم کو ہی سیکھ رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے سیکھیں، اسی اہمیت کے ساتھ سیکھیں. تو جب آپ اسم کو کور کر لیں گی، اسم اب جیسے آپ نے اعراب کور کر لیا، تو اعراب کا یہ رول دیکھیں، ناؤن پہ بھی لگے گا، پروناؤن پہ بھی لگے گا، ایڈجیکٹو پہ بھی لگے گا، ایڈورب پہ بھی لگے گا، انٹرجیکشن، مطلب ایک بہت بڑی کیٹیگری کے اوپر آپ کا یہ رول لگے گا. تو آپ کو کافی کچھ آپ نے کور کر لیا. اگر یہ پورے اسم کو ہم کہیں کہ اسم کی یہ 80% آف دا الفاظ اسم ہی کور کر لیتے ہیں اگر ہم کہیں، تو اس کا آپ نے 1/4 کور کر لیا، کیونکہ اعراب کور کر لیا. بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے اعراب از سم تھنگ، آپ کو اس کے اعراب کی میننگ سے ہی پتا چل رہا ہے، عربی عین رابا اس کا روٹ لیٹر ہے، کہ یہ کافی امپورٹنٹ پارٹ آپ نے کور کر لیا. تو کہنا یہ ہے کہ اسم کا تقریباً 75% چیز آپ نے کور کر لی. 25% میں آپ دیکھیں گی کہ آپ کر لیں گی جنس، عدد اور وسعت. تو کافی آسانی سے الحمدللہ. اور آپ کی کلاس ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بہت محنتی ہے، اور بنا کسی ہوم ورک، بنا کسی ٹیسٹ کے بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں. اسی وجہ سے اعراب آپ کے بہت کلیئر ہے. اور نہ صرف مجھے اس دیکھ کے بہت ہی اچھا لگا کہ رمضان کی اتنی لمبی چھٹی دی گئی آپ کو، اور اس کے بعد جب اعراب کا ہم نے پوچھا تو لوگوں نے بہت اچھی طرح جس آرڈر میں کیا تھا ہم نے تو کروایا تھا، وہ سب پورا اس طرح آپ نے الحمدللہ ریٹین کیا ہوا ہے. تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور اس چیز کو آگے لے کے چلیے گا، کیونکہ جیسے اس وقت آپ کی اس پوزیشن، آپ کی اس ایٹیٹیوڈ پہ ہم اگر خوش ہو رہے ہیں، تو ایٹ دا سیم ٹائم شیطان جتنا ہم خوش نہیں ہو رہے ہیں نا، اس سے زیادہ وہ پریشان ہو رہا ہے. تو وہ تو ضرور لے کے آئے گا آپ کے راستے میں رکاوٹیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ عقل مند کتنی ہے کہ شیطان کی رکاوٹوں کو رکاوٹ سمجھتی ہے، یا اپنے لیم ایکسکیوز بنا کر ان کو اپنے اوپر آپ سوار کر کے راستے سے یا تو ہٹ ہی جاتی ہیں، اور نہیں تو گھسٹتے پسٹتے چلتے ہیں. پھر ہمیں اینڈ میں کچھ سمجھ میں ہی بھی نہیں آتا کہ ہم نے کیا کیا ہے نا. وقت تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وقت ضائع ہوا، یہ ورڈ تو ہم یوز نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ کچھ بھی نہ سمجھیں اور 1 گھنٹے آپ اس نیت سے بیٹھی ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھیں گی، اور آپ نے ایٹ دا اینڈ کچھ بھی نہیں سمجھا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس 1 گھنٹے کو آپ کے اعمال نامے میں لکھ لیں گے، ہے نا، سنہری اس سے لکھ لیں گے. تو ضائع تو نہیں کہیں گے، کیونکہ لیکن انسانی ذہن کے حساب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے حساب سے تو کچھ بھی ضائع، ایک ذرے برابر چیز بھی ضائع نہیں ہوتی. لیکن ہم انسانی عقل کے حساب سے اگر دیکھیں، اپنی ناقص عقل کے حساب سے دیکھیں، تو ہم یہی کہہ دیں گے کہ ہم نے اتنے گھنٹے لگائے اور کچھ سیکھا نہیں، ہے نا، کچھ فائدہ نہیں ہوا، ایسے بات کہہ دیں گے. حالانکہ یاد رکھیں فائدہ ہر حال میں ہے. ہمارے کان سے کوئی بات گزری تو کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو وہ چھوڑ ہی جاتی ہے الحمدللہ. تو آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ حرف کریں گے. یہ ہے آپ کے وہ اسم کے 4 پہلو: اعراب، جنس، عدد، وسعت. یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے. یہاں پتہ نہیں کیوں حالت اوور لیپ کر گئی. اعراب کو ہی حالت بھی کہتے ہیں، تو اسی لیے یہ شاید اوور لیپ کر گیا یہاں پہ. کسی اسم کی کیا حالت ہے، وہ سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے، یا جینیٹیو ہے، مطلب کہ وہ کام کر رہا ہے یا کام ہو رہا ہے، یا کسی اسم سے تعلق پتہ چل رہا ہے. تو اس اسم کے اس جملے میں کیا حالت ہے، یہ بتاتے ہیں اعراب. اور جنس، عدد اور وسعت، یہ بار بار آپ دیکھیں گی تو
आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। फिर ये था, देख लें आपकी इसकी जो हालत थी, जो एराब था, वो तीन हालत थी उसकी, और उसी के हिसाब से तीन एराब हो गए। हालत थी फाइली, मफूली और इजाफी, और उसी के उसमें उनका एराब क्या हो गया, तो रफा, नसब और जर। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को बहुत अच्छी तरह आता है। उसके बाद जिन्स का टॉपिक आज मैं खुद यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगी। जिन्स के हिसाब से आप देखिए, अभी हमने कहा कि अरबिक में हर लफ्ज या तो मुजक्कर है या मुअन्नस। अरबिक में कोई भी न्यूटर जेंडर नहीं है, याद रखें। अरबिक में हर लफ्ज, हर इस्म मुजक्कर है या मुअन्नस है। यहाँ तक कि अरबिक में एडजेक्टिव भी मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। एडवर्ब भी, कोई चीज तेज दौड़ रही है, तो यहाँ पे जो ये तेज वर्ड आया, ये क्या है, ये एडवर्ब है। तो क्विक, जल्दी, ये क्या है, ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट क्या है, वर्ब को बता रहा है ना, इसीलिए एडवर्ब कहलाता है। तो ये फास्ट भी मुजक्कर के लिए मुजक्कर होगा की शक्ल में आएगा, और मुअन्नस इस्म के लिए मुअन्नस इस्म की शक्ल में आएगा। इसलिए जब आप शुरू की स्टेजेस पार कर लेती हैं, तो फिर कुरान को समझना बहुत आसान भी हो जाता है। आपको ये मुजक्कर मुअन्नस बहुत क्लियरली बता रहे होते हैं कि वो किस चीज की तरफ, ये जमीर किसकी तरफ जा रही है, ये चीज, ये एडजेक्टिव उस जुमले में किसके लिए मखसूस है, बहुत क्लियरली पता चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बात यहाँ पे और अच्छी तरह समझ लीजिए कि अरबिक में ज्यादातर अस्मा मुजक्कर है। मुजक्कर एक बड़ी कैटेगरी है और मुअन्नस एक छोटे से अस्मा की कैटेगरी है। तो अभी आपने क्या सुना कि ज्यादातर अस्मा क्या है, मुजक्कर है, और कुछ इस्म जो है वो मुअन्नस है। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज जब मुजक्कर और मुअन्नस दोनों की कैटेगरी मिल के रहती है, जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल है, नीचे से मैं आपको वो बना दूं। जी, देखिए बीच में आवाज आ जाती है तो पूरा एकदम दिमाग ही समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ा रहे थे। बहरहाल, तो अरबिक में मुजक्कर एक बड़ी कैटेगरी है और मुअन्नस चंद अस्मा है। हमारे उल्मा ने हमेशा से, खास अरबिक का ये तरीका निकाला कि वो नॉन अरब्स की आसानी के लिए उन्होंने ये इस कैटेगरी की हमको पहचान करवा दी। अगर हम मुअन्नस की पहचान कर लेंगे तो हम देखेंगे कि वो इस्म मुअन्नस है या नहीं है। जैसे हम यहाँ कुछ इस्म लिख देते हैं, अब आप उस क्लास में ये सारे वर्ड करते हैं ना, तो कितना आसान लगता है। ये कुछ हमने इसमें देखे, सब तन्वीन के साथ है, तो ये पता चल गया आपको कि ये इसम है। ठीक है, क्योंकि तन्वीन है तो कंफर्म है कि ये इसम है। अब हमको देखना होगा, ये सारे अस्मा दिए हुए हैं, हम देखेंगे मुअन्नस की हमें कुछ पहचान बता दी जाएगी। उन पहचान के ऊपर हम वन बाय वन इसको टेस्ट कर लेंगे। अगर ये मुअन्नस में नहीं है तो फिर, अगर हमने मुअन्नस की कैटेगरी पहचानी, अगर ये उसमें फिट नहीं आ रहा है तो फिर वो मुजक्कर में ही चला जाएगा।
तो इसलिए मुअन्नस की चंद अलामतें हैं, चंद चीजें हैं, वो हम पहचान लेते हैं, फिर उस इसम को उस पर टेस्ट करते हैं। अगर उसके अंदर आ गया वेल एंड गुड, वो इसम मुअन्नस होगा, और अगर नहीं आया, नहीं फिट हुआ उन 3 कैटेगरीज में, तो फिर उसको आप मुजक्कर में एट दिस स्टेज आप डाल देंगी, क्योंकि हम आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अब डिक्शनरी खोलें और करें। लेकिन प्रॉपर क्या होगा कि अगर मुअन्नस की कैटेगरी में नहीं आता है वो, तो फिर अब हम डिक्शनरी खोल के देख लेंगे कि हाँ भाई ये मुजक्कर में है या वहां से कंफर्म करते हैं। लेकिन आपको अभी ये नहीं करना है, आपको वही इसमें दिए जाएंगे कि अगर वो मुअन्नस की कैटेगरी में फिट नहीं हुए तो हर हाल में मुजक्कर ही होंगे, आप वहां डाल लें। चंद एक्सेप्शन होंगे वो हम बताते चलेंगे। वो एक्सेप्शन क्या है, वो आपके कुरान के कॉमन एक्सेप्शन है, इसलिए आपको बता दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो मुअन्नस की कैटेगरी है, तो हम मुजक्कर पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, हम पढ़ेंगे मुअन्नस को, छोटी वाली कैटेगरी को पढ़ लेंगे। ये बड़ी कैटेगरी है और ये छोटी कैटेगरी है, तो छोटे वाली कैटेगरी को हम पढ़ेंगे, और बड़ी कैटेगरी हमारी ऐसे ही, अगर ये इसको चेक कर लेंगे, अगर ये नहीं है तो बस इसमें हम डाल देंगे और हमें ये बड़ी कैटेगरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी ये चारों इसमें करके भी दिखाएंगे। सबसे पहला जो है वो है हकीकी मुअन्नस। इंग्लिश में हम 2 वर्ड यूज करते हैं, फीमेल और फेमिनिन। फीमेल उन चीजों को कहते हैं जो रियली फीमेल हो, लाइक उनके अंदर फीमेल ऑर्गन पाया जाता हो, जैसे माँ, जैसे बकरी, जैसे मुर्गी। ये सारी चीजें क्या है, ये फीमेल एक्चुअली है। और फेमिनिन क्या है, जैसे हम उर्दू में बोले, मुझे तो बोलते डर लगता है कि मैं उसका जेंडर ना खराब कर दूं, कुर्सी टूटी हुई है कुर्सी टूटी है। तो अब देखिए, कुर्सी के साथ हम टूटी बोल रहे हैं, कुर्सी को कैसे डील कर रहे हैं हम, फेमिनिन की तरह डील कर रहे हैं। तो उसको हम फिर फीमेल, कुर्सी को फीमेल नहीं कहेंगे, कुर्सी को क्या कहेंगे, फेमिनिन कहेंगे, कि वी आर डीलिंग इट एज फीमेल। वो फीमेल तो नहीं है, तो ऐसी चीजों को फेमिनिन कहते हैं। तो ये हकीकी जो है वो फीमेल की कैटेगरी है, कि हकीकतन वो फीमेल है। ठीक है, हकीकी मुअन्नस, यहाँ मुअन्नस लिख दूं मैं, याद रखिए कि हम लोग अब मुअन्नस ही कर रहे हैं, मुजक्कर नहीं कर रहे। तो अब हमारे पास ये 4 इसम है, इसमें हम देखेंगे अबुन हकीकी मुअन्नस है, नहीं ये तो फादर है, ये तो मेल है, फीमेल तो नहीं है, तो ये इस कैटेगरी में फिट नहीं है। ठीक है, उम्मुन, अम्मी, जी हाँ, अम्मी जो है वो फीमेल है, तो वो इस कैटेगरी में फिट हो गई। और सॉरी, मैंने 2 शब्द क्यों लगा दिया। उम्मुन हमारा डिसाइड हो गया, मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दे रही हूँ। इस इसम की हमको पता चल गई और हमने इसको फिक्स कर दिया कि उम्मुन हकीकी मुअन्नस है। अब उन अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि किस कैटेगरी में ये जाएगा। ठीक है, किस कैटेगरी में जाएगा बताएं। अभी छोड़ते हैं इसको, यहीं पे छोड़ते हैं। हालांकि यहीं पर पता चल जा रहा है कि ये मेल है, क्योंकि ये भी फीमेल और मेल तो क्लियर कट पता चल जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि क्राइटेरिया क्या है, कि पहले हर इस अबुन को भी मैं सब पे चेक कर लेती हूँ और फिर डिसाइड करेंगे कि ये मुजक्कर है। कुर्सी युन, ये भी हकीकी मुअन्नस में नहीं है, कुर्सी तो हकीकी नहीं हो सकती है ना, फीमेल और मेल तो नहीं हो सकती। इसी तरह जन्नतुन, इसके अंदर भी कोई फीमेल वाली बात तो नहीं है। तो ये दोनों भी अभी डिसाइड नहीं कर सके हम। इन 4 में से सिर्फ उम्मुन डिसाइड हुआ कि वो हकीकी मुअन्नस है। तो आपने देखा कि मुअन्नस की जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है हकीकी मुअन्नस। आप लोगों को मैं 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, यहीं पे याद करें, स्क्रीन को देखें और याद करें कि मुअन्नस को जो पहली स्केल है, पहली सीव है, चलनी कहते हैं ना, हम सारे अस्मा लेंगे और उनको डिफरेंट चलनियों में से पास आउट करेंगे। अब ये उम्मुन जो है वो हकीकी वाली चलनी में ऊपर ही रह गया और बाकी ये तीनों अस्मा नीचे चले गए।
नाउ दे हैव, उनको अब जो है दूसरी चलनियों से निकलना होगा, दूसरे टेस्ट से गुजरना होगा, जबकि उम्मन हकीकी मोनस की कैटेगरी में पास हो गया और ये क्लियर हो गया। 30 सेकेंड आप याद करें हकीकी मोनस। अब दूसरा आपने देखा, अभी हमने लिखा कयासी मुअन्नस, बस 3 है, टोटल 3 है, इंशाल्लाह आज ही तीनों कवर हो जाएंगे। तो दूसरी कैटेगरी है कयासी मुअन्नस। कयास आप उर्दू में समझती हैं, बिल्कुल वही वर्ड है यहाँ पे। कयास अंदाजा करते हैं, कि अंदाजे से पहचानते हैं कि ये मुअन्नस होगा। और उसके लिए जाहिर है, अब अंदाजे के लिए कोई चीज हम रैंडम ऐसे तो नहीं करेंगे, कुछ अलामतें हमको बता दी गई हैं। अगर वो अलामत आपको नजर आए तो आप कयास कर सकते हैं कि वो मुअन्नस होगी। आपने कयास कर लिया, उसको डिक्शनरी में जाके कंफर्म करना होता है, याद रखें। लेकिन मैं बार बार आपसे कहती हूँ, कंफर्मेशन वाली चीज आपको नहीं करनी है। लेकिन एडवांस लेवल पे, जब हम ग्रामर एडवांस लेवल पे करते हैं, तब हमें फिर डिक्शनरी हर वक्त साइड में रख के बैठना पड़ता है। तो लेकिन अभी इस एलिमेंट्री लेवल पे आपको नहीं करनी, वो अल्फाज आपको दिए ही नहीं जाएंगे, और कुरान पे हम आपको ले जा नहीं रहे हैं अभी, है ना। तो वहां जाके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कयासी मुअन्नस के लिए आपको 3 अलामतें दे रहे हैं, जिसमें से पहली अलामत है गोल ता। इसको कहते हैं ताए मरबूता। ठीक है, मैं लिख दूं, आपको याद नहीं करना है, लेकिन ऐसे लिखते लिखते ना, सुनते सुनते लिखते लिखते आपको इंशाअल्लाह ताला ये टर्म्स भी आ जाएंगे। अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा, बोलिएगा ताए, यही ताए मरबूता, गोलता। हम गोलता बोलते आए ना, उसमें भी, यहाँ भी गोलता। ये गोलता बड़ी सिग्निफिकेंट है, हर जगह देखें ये अपना कुछ अलग ही मकाम बना रही होती। तो वहां भी गोलता आपने देखा था कि डिफरेंटली डील कर रही थी, अलिफ नहीं ले रही थी ना। यहाँ भी गोलता देखे मुअन्नस स्पेशल है। तो अगर कोई, और आपको ये पता है कि गोलता हमेशा लफ्ज के आखिर में आती, ये बीच में आएगी ही नहीं, क्योंकि इसको तो बंद होना है ना। अगर बीच में आएगी तो इसे खुलना पड़ेगा, और जब ऐसा होता है, जब ये बीच में आती है तो ये खुल के ये वाली ता बन जाती है। ठीक है, तो गोलता हमेशा एंड में आएगी। याद रखें, कोई लफ्ज अगर सिर्फ ता यानी ताए मजबूता उसे कहते हैं, खुली ता कह लीजिए, आप बड़ी ता कह लीजिए, है ना। कौन सी ता यहाँ दिख रही है, ये वाली ता, ये वाली ता। अगर अब ये अलामत है ना, अगर कोई लफ्ज बड़ी ता से एंड हो रहा है, तब वो अलामत नहीं होगी कयासी मुअन्नस की। फिर आप उसको कयासी मुअन्नस की कैटेगरी में नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ गोल ता से एंड हो रही है अगर, तो आप उसको मुअन्नस की कैटेगरी में ले सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे फीमेल लिख दें, जिससे असल में मुजक्कर मुअन्नस इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि दोनों ही मेल से शुरू होता है, मीम से शुरू होता है, इसलिए मुझे इंग्लिश में जाना पड़ रहा है, एफ मैंने लिख दिया इसको। अब आपको एक और बात पता चली कि अगर कोई इसम बोलता से एंड हो रहा है, तो चांसेस हैं कि वो, बल्कि आपके लिए एट दिस स्टेज, कि वो फेमिनिन होगी। अब हम फीमेल नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीजें हकीकतन तो नहीं है, हकीकी वाली तो खत्म हो गई। अब ये फेमिनिन चीजें कयासी मुअन्नस हो सकती है। अब उनको देखा हमने, बोलता से एंड नहीं हो रहा, तो ये कयासी मुअन्नस नहीं हो सकता। कुर्सीयुन बोलता से एंड नहीं हो रहा, कयासी मुअन्नस नहीं हो सकता। जन्नतुन बोलता से एंड हो रहा है, तो ये हो गया हमारा कयासी मुअन्नस। तो ये भी
इस लिस्ट से निकल गया, और जन्नतुन किस लिस्ट में आ गया? मैं जन्नतुन आ गया मुअन्नस की लिस्ट में, ताए मरबूता होने की वजह से। और इसकी किस्म भी आपको बतानी पड़ेगी। ये क्या होगी? कयासी मुअन्नस। हमने कयास किया, हमने अंदाजा किया, क्योंकि हमको 3 अलामतें बता दी उलमा ने। उन्होंने कुरान देखा और देखा कि ये अल्फाज जब आते हैं तो इनके आगे पीछे जो ज़मायर आती है वो सब फेमिनिन यूज हो रही है। तो इस वजह से दे आर, मतलब कि ये कुरान में इस्तेमाल हुए हैं ये अल्फाज मुअन्नस की तरह। तो इन अलामतों के जरिए हमने कयास किया कि ये मुअन्नस है। तो जन्नतुन कयासी मुअन्नस की कैटेगरी में आया। क्यों आया? क्योंकि हमें यहाँ पे गोलता वाली अलामत नजर आई। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। जी मैम, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। सबको क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। जी 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 हम उस्ताद। जी हम यहाँ देखिए, हमने 4 वर्ड लिए ना, यही तरीका है और इसी तरीके को आपको अपनाना पड़ेगा किसी भी इसम को पहचानने के लिए। तो हमारा ये एक किस्म और हमने पहचान लिया। हमें 4 थे जिसमें से एक हमने यहाँ पहचान लिया, एक यहाँ पहचान लिया। अब आगे चलते हैं, बी देखते हैं। कयासी मुअन्नस की हमने बता था 3 कैटेगरी आपको बताएंगे ना, ए बी एंड सी। दूसरा क्या है कि कोई लफ्ज, आपको सुन के बहुत ही मजा आएगा कि ये सारी चीजें एराब से भी कैसे कनेक्ट हो रही हैं। कुछ लोग हैं जब वो चीजें मिलती हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं। अपना पता है, अपना किसी जो कहते हैं ना कि आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, तो कुछ लोग उसको हाफ एम्प्टी देखते हैं, कुछ लोग हाफ फुल देखते हैं, है ना? बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई चीज आपको लग रही है कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल वही है जो हमने पहले पढ़ी हुई थी, यहाँ भी वही है, तो कोई नई चीज याद नहीं करनी है। वो जो मैंने एराब में जो एक्सेप्शन याद किए थे, वो यहाँ मुझे वही वही चीजें मिल रही हैं। तो ये सोच के आप खुश हो जाएं। यहीं पे दूसरा बंदा हो सकता है, वो कहे उफ ये तो वहां भी था एराब में, और यहाँ भी इस तरह से है, हम वहां कैसे याद रखेंगे? फिर हम एराब में भी याद रखें कि अलिफ नहीं लेगा, और यहाँ पे याद रखें कि ये फीमेल है। तो ये हो गए द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप हाफ फुल वाले हैं या हाफ एम्प्टी वाले, है ना? मेरे साथ चलिए, हम लोग हाफ फुल बन के चलेंगे इंशाल्लाह ताला। द ग्लास इज हाफ फुल। दूसरी अलामत भी वही है जो अलिफ नहीं ले रही थी, यानी अलिफ हमजा। मैंने पहली क्लास में, चूंकि आप लोग नए नए थे, तो मैं गोलता और अलिफ हमजा ही कह के रह गई। इसका मैंने प्रॉपर आपको अरबिक वर्ड नहीं दिया, लेकिन अब थोड़ा आप लोग बड़े हो गए तो मैं अरबिक वर्ड भी लिखूंगी। मैं आपसे उम्मीद नहीं रखूंगी कि आप ये याद करें और बोले, लेकिन आप सुन लें बस इसकी। इसको कहेंगे अलिफ ममदूदा, और अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि क्यों कहते हैं अलिफ ममदूदा। अलिफ से पहले तो आपको पता है जबर ही आएगी ना यहाँ पे। अलिफ अपने पहले जबर की डिमांड करती है, ठीक है? तो यहाँ पे जबर ही आपको दिखेगा। इस पहले वाले हर्फ पे, ये जो पहला हर्फ है इससे डैश वाला, इसके ऊपर जबर दिखेगी यहाँ। जब कोई लफ्ज अलिफ ममदूदा, अलिफ हमजा, देखिए वही गोलता यानी ताए मरबूता, और वही अलिफ हमजा यानी अलिफ ममदूदा। इसको क्यों कहते हैं अलिफ ममदूदा? क्योंकि आपको पता है कि जब भी मध्य असली किसको कहते हैं? जबर के बाद अलिफ, पेश के बाद वाव, और जेर के साथ या आ जाए, है ना, और उसके बाद हमजा आए, तो यहाँ आप देखेंगी मद लगी होती है। मध्य असली के बाद हमजा आ जाए तो ये मध्य असली जो है वो फर्दर, मध्य असली, मद का मतलब होता है खींचना। चलिए तजवीद की क्लास शुरू हो गई। मद का मतलब होता है लंबा करना या खींचना। तो ये मध्य असली थी, डबल काउंट आप कर रहे थे, लेकिन ये हमजा आया तो मध्य असली जो है वो फर्दर इलोंगेट हो गई और बढ़ गई। अब ये 2 हरकत के बजाय 4 हरकत पे चली गई,
ज्यादा बड़ी हो गई, और इसको दिखाने के लिए फिर इस तरह से मद के ये साइन ये सब यूज होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इस अलिफ को कहा जा रहा है अलिफ ममदूदा, क्योंकि इस अलिफ के बाद हमजा आ गया, तो इस हमजा ने इस अलिफ को और लंबा कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये तो सब एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों ये कहा जा रहा है अलिफ ममदूदा। क्यों? क्योंकि अलिफ के बाद जब हमजा आया, आप देखिए समा उन, मा उन, इसी तरह पढ़ती है ना। आप ये वाले अल्फाज देखिएगा कुरान में खोल के आज, इस सब जगह एक मिनट, जी हाँ। अलिफ ममदूदा वाली बात किसी की समझ में नहीं आ रही, हालांकि समझने की बात नहीं है, अगर समझ में नहीं आई तो परेशान मत हो, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी तजवीद की, और इस एक्सप्लेनेशन थी कि इसको अलिफ ममदूदा क्यों कहा जा रहा है। जब भी मद असली वाली अलिफ पर, अलिफ के बाद, सॉरी पर नहीं, जब भी मद असली वाली, मद असली क्या है? जबर के बाद अलिफ, जबर अलिफ जो ही मद असली बन जाता है। इस अलिफ को आप दो काउंट, अब चले थोड़ी सी तजवीदी कर लेते हैं। देखिए ये बा, इसको बा पढ़ेंगी, और इसको आप क्या पढ़ती हैं? बा। क्यों पढ़ती है बा? क्यों? दो काउंट कर देती है ना। तो इसको कहते हैं मद असली। अब इसके बाद जब हमजा आ गया तो पढ़ेंगी बा आ, लंबा करेंगी, तो ये हो गया ये अब ये अलिफ बन गई अलिफ ममदूदा। क्यों बन गई? क्योंकि इसके बाद मद की एक अलामत हमजा आ गई, दो अलामतें हैं वो मैं नहीं बता रही यहाँ पे, एक अलामत हमजा आ गई। ये क्लियर हो गया सबको? जी मैम। अगर कोई भी है तो बिल्कुल शर्म ना करे, पूछ ले, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। पूछ ले कि तो ये दूसरी अलामत भी समझ गई है आपकी कैसे है? बस ये दोबारा बता दें। क्या दोबारा? या इसको अलिफ ममदूदा क्यों कहते हैं? सवाल पूछे, प्रॉपरली सवाल पूछिए। जी मिस, आपने डैश लगा के हमजा लगा के और मतलब मद असली लगाइए कि हमजा आगे आएगा, तो मिस ये जो डैश है क्या यहाँ पे कोई वर्ड आएगा? जी तो हाँ, कैसे अभी मतलब मैंने पता कहा चलेगा ना, कि ये? हाँ वर्ड आएगा, जी जी जाहिर है ऐसे आएगा। अभी मैं जी। वर्ड लिख के दिखाऊं, या ये तो मैं हर्फ दिखा रही थी कि यहाँ पे एक हर्फ आ रहा है, लेकिन वर्ड देख लीजिए आप। वैसे मुझे ये वर्ड यहाँ लिखना नहीं चाहिए, दूसरा, लेकिन मैं अभी फिलहाल आप बस एग्जाम्पल देखिए। आपने इसी तरह कुरान में पढ़ा है ये लफ्ज? यहाँ मत दिखती है आपको? तो जब इस मद असली के बाद हमजा आया, इस वजह से ये मद का निशान बढ़ता है। अब दो काउंट से ये चार काउंट पे चली जाती है, इसलिए इस वाले अलिफ को जिसके की बाद हमजा आता है, ये क्या हो जाता है? अलिफ ममदूदा ये कहलाता है, ठीक है। तो ये एक अलामत है, लेकिन इस अलामत के साथ एक शर्त है, तो ये समाउन इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ये इसको यहाँ पे छोड़ दें। उसके बाद अ, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी देख लेते हैं। अगर कोई लफ्ज
अलिफ मकसूरा के साथ आप देखेंगे कि इस तरह से आता है। आपने इस तरह से अल्फाज देखे हैं आपने? जी टीचर। इसमें देखिए, मैं अब एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। ये 3 मैंने लाइन से लिख दिया जिससे आप याद रखें। अलिफ मकसूरा, ये अलिफ कसर की हुई, कसर कहते हैं छोटा कर देने को। नमाज आप कसर कर लेती है ना सफर में, तो उसी से याद रखिए अलिफ मकसूरा। ये अलिफ, ये देखिए ये अलिफ का क्या साइज था, यहाँ छोटी अलिफ, लेकिन इस छोटी अलिफ को कुर्सी की जरूरत पड़ती है, जो कि या कुर्सी बन के इसकी आती है। तो आप देखिए यहाँ जब आप इसको पढ़ती हैं तो इसको आप वो नहीं पढ़ती क्या, या नहीं पढ़ती, अलिफ ही पढ़ रही होती है। ये या बस इसकी चेयर है, ठीक है। तो अलिफ मकसूरा से अगर कोई लफ्ज एंड हो रहा है तो वो भी चांसेस हैं कि क्या होगा, मुअन्नस होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं। अब आपने जो अलिफ ममदूदा की कैटेगरी है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये डिफेक्ट्स एंड कलर्स, सारी चीजें जो अलिफ ममदूदा से एंड होंगी वो नहीं, अगर वो डिफेक्ट है या कलर है। जैसे कलर का मैं आपको पहले बताती हूँ, ठीक है, पहले मैंने कलर लिखा है तो कलर बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि अबियद, अबियद का मतलब होता है वाइट। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि हर इसम जो है वो उर्दू में भी हम ऐसा करते हैं। जैसे देखिए उर्दू में क्या कहते हैं, काला काली करते हैं ना, काला काला समथिंग एंड काली समथिंग। तो ठीक इसी तरह से अरबिक में भी अबियद ये होगा मैस्कुलिन। अब ये देखिए आपको दिखा बैदाउ, ये होगा वाइट किसी फेमिनिन के लिए अगर यूज हो। ठीक है, एक और कलर ले लेते हैं, अखदर। अखदर कहते हैं ग्रीन को। आप लोगों ने किसी ने सही नहीं कराया, बैदाउ के आगे भी मैंने मेल लिखा हुआ है। अब ये होगा खदराउ, ये हो गया ग्रीन, फीमेल। डिफेक्ट्स जैसे बकमाउ, सुमुम बुकमुन उम्यून पढ़ती है ना आप, सुमुम बुकमुन उम्यून, वहीं से मैं दोबारा लिखूं इसको, अच्छा नहीं, बकमाउ। अब ये क्या देखा आपने, जबर देखा, अलिफ देखा, हमजा देखा है ना। तो ये बकमाऊ क्या होगा, गूंगी होगा, गूंगा नहीं हो सकता ये क्या होगा, किसी औरत के लिए बात हो रही है, गूंगी। ठीक है, तो
اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ چونکہ یہ کلر بھی یہ گرین یہ ہری ہوگا، یہ سفید تو اردو میں سفید ہی بولتے ہیں، تو یہ ہری ہو گیا یہ ہرا ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب اب کم ہوگا تو گونگا ہوگا اور بک ماؤ تو گونگی. آپ نے سنا اس میں اعما تھا نا، انجاہ الاعما ہے نا، جب وہ اندھا دوڑتا ہوا آیا تو اعما اور یہ ہو جائے گا اعماؤ. اندھی. تو جب کوئی لفظ الف ممدودہ سے اینڈ ہو رہا ہوگا ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان دو کیٹیگریز میں بھی آ رہا ہو. پہلے کیا دیکھیں گے کہ ہم الف حمزہ دیکھیں گے، پھر اس کی میننگ ہم کو پتا ہونی چاہیے. میننگ دیکھیں گے کہ کیا وہ ایک کلر ہے، کیا وہ کوئی ڈیفیکٹ ہے. سائمہ ڈیفیکٹ کو کیا بولیں گے؟ رنگ اور عیوب. آ گیا یاد آنے سے. عربک پہلے لے لیتے رنگ، اور ڈیفیکٹ کو اردو میں کیا بولیں گے؟ کمی. نہیں، آپ نے صحیح پہلے کہا تھا عیب، یا اور جمع ہوگی تو عیوب. اصل میں عیب جو ہے عربک میں ہے تو اردو میں بھی عیب ہی ہے. جی ہاں. چلیں ٹھیک ہے، رنگ اور عیب. اب عربک میں ان کو کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم لکھوا دیتے ہیں، الوان اینڈ عیوب. الوان لون کی جمع ہے، لون کہتے ہیں کلر کو، تو الوان حرکت لگا دیں کیونکہ لوگ نئے ہیں. الوان اور عیوب یہ عیب کی جمع ہو گئی. تو نہ صرف الف ممدودہ، یاد رکھیں نہ صرف الف ممدودہ سے اینڈ ہونا چاہیے. پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ یہ علامت پائی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کی میننگ سے چیک کریں گے کہ کیا وہ کوئی کلر ہے. اگر وہ کلر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلر کسی فیمنن کے لیے یوز ہو رہا ہے، تو یہ کلر بھی فیمنن ہوگا. فیمنن کے لیے ساری چیزیں فیمنن یوز ہوں گی. میسکولن کے لیے سارے ایڈجیکٹیو سارے ایڈورب میسکولن یوز ہوں گے. یہ عربک کا فائدہ ہے. یا پھر وہ کوئی عیب تو نہیں ہے، اگر کوئی عیب ہے تو تب بھی وہ ہوگا. اسی لیے میں نے کہا سما ان اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اگر سما ان ہے آپ دیکھیں یہ الف ممدودہ ہے، یہاں پہ یہ الف ممدودہ ہے، لیکن اس کو ہم قیاسی مؤنث میں نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے بات صحیح ہے کہ الف ممدودہ ہے، لیکن نہ یہ کلر ہے، آسمان نہ کلر ہے، اور نہ ہی کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی کمی بھی نہیں ہے. تو یہ پھر ہمارا اس قیاسی مؤنث کی کیٹیگری سے باہر نکل گیا، یہ قیاسی مؤنث میں نہیں آئے. آگے دیکھ لیں گے کہ کسی اور کیٹیگری میں شاید آ جائے فیمنن میں، لیکن بہرحال قیاسی مؤنث کے ساتھ آپ کو یہ دو شرطیں بتائی گئیں. اب اسی وقت آپ یاد کریں ہمارے ساتھ کہ قیاسی مؤنث میں الف ممدودہ بتایا گیا، اور الف ممدودہ کے ساتھ دو شرطیں بتائی گئیں کہ وہ یا تو الوان ہو یا عیوب ہو، یا تو کلرز ہو یا ڈیفیکٹ ہو، رنگ ہو یا عیب ہو. اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز نکل گئی تب ہم ضرور کہیں گے کہ وہ مؤنث ہے. تو یاد کر لیں اس چیز کو یہیں پہ، الف ممدودہ آپ کیا یاد کریں گی؟ الوان عیوب یاد کریں گی یا رنگ یا عیب یاد کریں گی؟ جو بھی چاہیں یاد کر لیں. 30 سیکنڈ کا ٹائم دے رہے ہیں، آپ یاد کر لیں. اس کے بعد میں سی کی کیٹیگری بھی آپ کو، سی کی بھی کچھ شرائط ہے وہ بھی بتا دوں. سب نے یاد کر لیا کہ الف ممدودہ جب ہمیں نظر آئے گا تو اس کو ہم فردر ٹیسٹ کریں گے کہ کیا وہ کوئی کلر یا عیب ہے. اگر کلر یا عیب میں سے یس آ گیا تو پھر ہم اس کو فیمنن کر دیں گے، ورنہ پھر باہر کر دیں گے. یہاں ہم نے کوئی ورڈ ایسا لیا رکھا نہیں تھا، لکھ دینا چاہیے تھا آپ کو.
खदराऊ वगैरह कुछ लिखते तो आप यहाँ से पकड़ लेते। खदराऊ का कोई एग्जाम्पल बताएगा? खदराऊ कहीं सुना है? कोई बताए? ये खदराऊ मैम का, रिपीट करें क्वेश्चन। ये हमने कहा खदराऊ, है ना? तो ये लफ्ज कुछ सुना सुना लग रहा है? जी मैम। बोले कहाँ सुना है? मैम ये गाय वाले चैप्टर में थे ना, सूरह बकरा के। ना, गाय वाले में तो सफराऊ था, पीली थी गाय ना, हरी कहाँ जी थी? जी। गाय हरी थी क्या? नहीं नहीं। चले, खदराऊ का कौन बताएगा? वैसे इन्होंने सही पकड़ लिया कि वहां पे सफराऊ कलर आया था। जी हाँ, वेरी गुड। मैं बताऊं या कोई बताएगा? उर्दू मैम में यूज होता ब्लैक है ये कलर। वर्ड। आप बताइए। उर्दू में खास चीज के लिए ये वर्ड यूज होता है, नहीं मैम यार? गुम्बद हदरा, गुम्बद वेरी हदरा। गुड, वेरी गुड, गुम्बद खदरा। ठीक है, गुम्बद खदरा, मस्जिद नबी का जो हरा गुम्बद है उसके लिए गुम्बद खदरा। अब लोगों को शायद पता भी ना हो कि हरे के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि अरबिक में वो गुम्बद जो है फेमिनिन है, तभी उसके लिए खदरा का वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, जी तो ये खदराऊ, तो ये हमारा आगे ये भी निकल गया हमारा अलामती मुअन्नस में। इसी तरह हुस्ना, हुस्ना नाम लड़कियों का होता है ना, तो ये हो गया जी आपका, मैम। ये अलिफ मकसूरा वाला एग्जाम्पल हो गया। चलिए अलिफ मकसूरा भी आपको दिखा देते। अब सी कैटेगरी हमारी थी अलिफ मकसूरा की, बस ये लास्ट है और इसके बाद आपकी छुट्टी। अलिफ मकसूरा ऐसे नजर आता है असल में, अरबिक मुसहफ में इस तरह नजर आता है। उर्दू उर्दू ही ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो मैं वही लिख दे रही हूँ। इस तरह से है मेरा अलिफ मकसूरा। ये इसकी भी हर अलिफ मकसूरा जो है आपका फैमिली नहीं होगा, मूसा ईसा है ना, इस तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं, वो नहीं होंगे उसमें। इसकी क्या है कि ये सिर्फ एडजेक्टिव्स के लिए, जिसको कि हम अरबिक में कहते हैं सिफत, अलिफ मकसूरा होना चाहिए और वो लफ्ज सिफत होनी चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, तभी वो फेमिनिन होगा। ठीक है, जैसे अहसन, सॉरी ये क्या लिख रहे हैं, अहसन, अहसन अमल है ना, अमलन क्या है, अमलन मुजक्कर है, इसीलिए उसके साथ जो लफ्ज आता है अहसन, हमसे अल्लाह ताला ने क्या कहा, कौन पढ़ेगा? सुभान अल्लाह, सुकून भी है और हरकत भी। कह रहे हैं कि कौन पढ़ेगा सूरह मुल्क की आयत, एहसन अमल वाली? कोई नहीं पढ़ेगा। अहसन अमला। मैं पढ़ूं? पढ़िए। लियब्लुवकुम अहसनु अमला। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा, थोड़ा सा और पहले से पढ़ दो। फिर वो शुरू से पढ़ना, एक मिनट सोचने दे। मैम यहाँ से अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला हाँ, व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। जी हाँ, माशाल्लाह। मतलब कि इन्होंने सही बताया था कि लियब्लुवकुम अय्युकुम, तो लियब्लुवकुम ताकि वो आजमाए तुम्हें, यहाँ से शुरू हुआ ना, ताकि वो आजमाए तुम्हें, अय्युकुम कौन है तुम में से, अहसनु अमला है ना, अमल में अच्छा। तो आपने देखा कि अहसनु आया, लिख दूं मैं यहाँ पे, अमलन, अमला कर देते हैं ना साकिन करके, लेकिन है तो अमलन है ना। हाँ, तो ये देखिए अमल आपका मुजक्कर था, तो उसके साथ एडजेक्टिव आपका क्या आया, मुजक्कर आया। ठीक है, लेकिन अब अगर कोई लड़की हसन है तो हम उसे हसन नहीं कह सकते, कोई चीज फीमेल है तो उसे फिर क्या कह देते हैं, हुस्ना, यही चेंज हो जाता है, हुस्ना। ये इसका मतलब, अहसन का मतलब होता है सबसे अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री। अकबर का मतलब होता है
सबसे बड़ा, ये क्या है? सबसे अच्छा। सॉरी, मैंने वहां बड़ा लिख दिया, ये सबसे अकबर मेरे दिमाग में था। सबसे अच्छा। अब जब सबसे अच्छी हुआ तो क्या करना पड़ गया? हुस्ना। तो जब अलिफ मकसूरा आएगा तो हम ये देखेंगे कि क्या ये सिफत है, क्या ये सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, सबसे अच्छी की बात हो रही है। हुस्ना। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जो है वो सबसे बड़ी थी उम्महातुल मोमिनीन में, ठीक है, इसीलिए उनका टाइटल है खदीजतुल कुबरा। लिखूं मैं इसको, है ना, खदीजा। फिर समझ में आता है कि सारी चीजें क्यों ऐसे, हम खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को क्यों खदीजतुल, समझ में आया ना, अब खदीजा रजी अल्लाह अन्हा सबसे बड़ी थी उम्महातुल मोमिनीन में, तो उन्हें कहा जा, सबसे पहली भी थी, उम्र में भी बड़ी थी सबसे, तो खदीजतुल कुबरा सबसे बड़ी, खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा सबसे बड़ी, इसलिए उनका टाइटल दिया जाता है खदीजतुल कुबरा, है ना, अकबर तो नहीं कहा जाएगा, कुबरा। तो ये अल्फाज जो अलिफ मकसूरा के साथ एंड हो, एट द सेम टाइम कंडीशन ये उसके बाद कंडीशन ये भी देखेंगे कि वो सिफत हो, वो एडजेक्टिव हो। अब ये हुस्ना एडजेक्टिव है ना, अच्छा बुरा इस तरह करके, है ना, बड़ा छोटा, ये एडजेक्टिव है ना, तो इसको कहेंगे, ये भी हमारा चला जाएगा फेमिनिन की कैटेगरी में। और यहाँ ये लफ्ज हुस्ना भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये आ गया हमारा कयासी मुअन्नस के अंदर। किस वजह से? अलिफ मकसूरा की अलामत की वजह से। अब कुर्सी की उनको देखेंगे कि कुर्सी क्या है, बस इसको मैं हल्का सा बता दूं। ये पूरी चीज जैसा कि मैंने कहा कि आज है इंट्रोडक्शन, तो आज मैं अभी ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, रिकॉर्डिंग आने में तो वक्त लग जाएगा, थोड़ा वक्त की मेरे पास कमी है, तो लेकिन पीडीएफ मैं फौरन भेज दूंगी, तो आप लोग नोट्स बना के इन चीजों को याद कर लीजिएगा, और अगली क्लास में और ढेरों एग्जाम्पल लेके आएंगे, और थर्ड क्लास में आपका ओरल टेस्ट हो जाएगा, क्विज हो जाएगा। टेस्ट मैं कहूँ तो खौफनाक लगता है, क्विज कहूँ तो मजेदार लगता है, तो क्विज हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और आपका जिसका टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद कुर्सी को देखिए कि उसका क्या हुआ। कुर्सी जो है थर्ड कैटेगरी जो इसम की है, अब उसमें कुर्सी को लेके चलेंगे, बाकी सारी चीजें तो हमारी निकल गई ना, अभी अब्बू भी बचे हुए हैं, हालांकि अब्बू को शुरू में ही डाल देना चाहिए फीमेल में। चले, कुर्सी ये बची हुई है, कुर्सी को चेक करेंगे समाई मुअन्नस के अंदर। समाई मुअन्नस क्या होता है? अहले अरब, बस ये वर्ड याद कर ले और फिर जुमला बना ले। अहले अरब अगर किसी चीज को मैस्कुलिन कह रहे हैं तो हमें भी मैस्कुलिन कहना पड़ेगा, अगर वो किसी चीज को फेमिनिन की तरह डील कर रहे हैं तो हमें भी वैसे ही डील करना पड़ेगा। और ये कोई अजूबा बात नहीं है, उर्दू वाले भी यही करते हैं। उर्दू में भी दूध, दूध क्या होता है? दूध मैस्कुलिन होता है, और दही शायद फेमिनिन होती है, बल्कि दही भी लखनऊ और दिल्ली में फर्क है, लखनऊ में वो मुजक्कर है, दिल्ली में आते आते वो मुअन्नस हो जाती है, वहां दही खट्टा है और दिल्ली में दही खट्टी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब लखनऊ लखनऊ में आप हैं तो लखनऊ वालों के हिसाब से बोले, दिल्ली आ गए तो दिल्ली वालों के हिसाब से आपको बोलना होगा। तो कहने का मतलब ये समाई मुअन्नस वो मुअन्नस होते हैं जो अहले जबान उन अल्फाज को वैसे डील कर रहे होते हैं, और अगर आप दूसरी तरह से बोलेंगे तो लोग हंसेंगे बैठ के, है ना। तो यहाँ भी हमको समाई मुअन्नस की एक लिस्ट दी जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे गैर मुनसरिफ की आपको दी गई थी ना, गैर मुनसरिफ की आपने 6 औजान और 6 पॉइंट्स याद किए थे, तो समाई मुअन्नस की अगली क्लास में, ये हमने बस टच किया है ये टॉपिक है नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास में इसकी रिवीजन होगी,
اور یہ ٹاپک کور کیا جائے گا. تو یہاں سمائی مؤنث میں بھی ہم نے دیکھا تو کرسی جو ہے اہل عرب مؤنث کی طرح کرسی کو ڈیل نہیں کر رہے. تو اب کرسی چلا گیا کیونکہ وہ حقیقتاً بھی مؤنث نہیں تھا, اس کے اندر کوئی علامت نہیں پائی گئی, نہ گولتا تھا, نہ الف ممدودہ تھا, نہ ہی الف مقصورہ تھا. تو اور سمائی مؤنث کی کیٹیگری میں اس لیے ہم نے چیک کیا, دیکھا تو اہل عرب کرسی کو فیمنن کی طرح نہیں بول رہے, تو اب وہ کرسی چلی گئی مذکر کی کیٹیگری میں. ٹھیک ہے, تو کرسی یون کے ساتھ آپ نے دیکھا اپنی پچھلی کلاس میں کہ وہاں پہ جب آپ نے ایڈجیکٹیو یوز کیا تو آپ نے قدیمن یوز کیا, آپ نے الکرسی قدیمن یوز کیا, الکرسی جیدن یوز کیا, جیدتن نہیں یوز کیا تھا, ہے نا. تو کیونکہ مذکر کے ساتھ مذکر ہی یوز کرنا تھا. تو سمائی مؤنث کی لسٹ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے. تو یہ بس ان تینوں سے پاس کرتے ہیں. اگر ان تینوں کیٹیگری, اب دیکھیں ابو جو تھا, ابن جو تھا, ظاہر ہے وہ حقیقتاً بھی فیمیل نہیں تھا, پھر اس میں کوئی علامت بھی نہیں پائی گئی, ہے نا, کوئی علامت بھی نہیں پائی گئی, اور اہل عرب اسے مؤنث کی طرح بھی ڈیل نہیں کرتے. تو اب یہ چلا جائے گا مذکر کی کیٹیگری میں, اور ابن مذکر ہے. حالانکہ فیمیل اور میل کو آپ فرسٹ اسٹیج پہ ہی الگ الگ کر سکتے ہیں, حقیقی میں ہی اس کو امن کو یہاں کر لیں اور ابن کو میل میں ڈال سکتے ہیں. آخر تک اس کو لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر تک ان چیزوں کو لے کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے جو میسکولن یا فیمنن ہے نا, جو حقیقی ہے ان کو تو ہم یہیں پہ کر دیں گے. فرسٹ اسٹیپ میں ہی اس کو کیا کر دیں گے کہ یہ میل ہے, مذکر ہے, کیونکہ یہ حقیقی مذکر ابو, تو یہ فرسٹ اسٹیپ میں یہیں پہ کلیئر ہو جائے. یہ ساری جو باقی کی چلنیاں ہیں, باقی کے اسٹیپس ہیں, وہ میسکولن اور فیمنن جو حقیقتاً نہیں ہے, اب ان کے بارے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عربک لینگویج کے حساب سے ہمیں چلنا پڑے گا. یاد رکھیں اگلی کلاس میں بہت سارے مزیدار اگزامپل لے کے آؤں گی, تو کلاس ضرور یاد وہ اٹینڈ کیجیے گا اگلی کلاس کہ اس میں دیکھیں گے آپ کی کس طرح سے چیزیں جو ہیں. سورج نکلا ہے نا, سورج اردو میں نکلتا ہے, سورج اردو میں مذکر ہے, اور عربک میں سورج کیا ہے, مؤنث ہے. عربک میں سورج نکلتی ہے نا. اردو میں دیوار ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن جدار مذکر ہے, ٹوٹا ہوا ہے. تو ایسے بہت سارے اگزامپل, بہت ساری مزیدار اگزامپل بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جب آپ عربک کریں گے تو وہاں پھر اردو کی اپنی کا کی اور اردو کے میسکولن فیمنن کا استعمال نہیں ہوگا, عربک کے حساب سے ہی انشاءاللہ تعالی کریں گے. ایک بار کوئک دیکھتے ہیں کہ جنس کے حساب سے ہم چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں مؤنث پر. اگر وہ مؤنث نکل گئی تو ویل اینڈ گڈ, اگر مؤنث کے تینوں ٹیسٹ میں وہ فیل ہو گئی وہ چیز, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذکر ہوگی. تو پہلا ٹیسٹ کیا ہے کہ حقیقی مؤنث, اس چیز کو, اس لفظ کو دیکھیں گے حقیقتاً وہ مؤنث ہے یا نہیں. اس کے نیکسٹ اسٹیپ پہ چلیں گے قیاسی مؤنث, قیاس کریں گے. اور قیاس کیسے کریں گے, ایسے رینڈم نہیں کریں گے, ہم کو کچھ علامتیں دی گئی ہیں, ان علامتوں کی بنا پر ہم قیاس کریں گے اور ان کو ڈال دیں گے قیاسی مؤنث میں. اگر بولتا ہے تو 90, یہ سب سے بڑی علامت یہی ہے قرآن میں جو زیادہ تر استعمال ہونے والی فیمنن کی علامت ہے, وہ 98% یہی ہے. جو یہ میسکولن فیمنن والی کیٹیگری میں, میل فیمیل تو کلیئر ہو جاتا ہے ترجمے سے ہی. زیادہ تر اسی لیے آپ نے دیکھا کہ القراءۃ الواضحہ بک میں جو انہوں نے فیمیل کی کیٹیگری لی وہ گولتا کی ہی لی, الف ممدودہ اور الف مقصورہ کو ابھی انہوں نے ٹچ نہیں کیا, کیونکہ 98% گولتا سے ہی آپ کو قرآن میں الفاظ ملیں گے فیمنن کے. تو اگر گولتا سے اینڈ ہو رہی ہے تو وہ چانسز ہے موسٹ آف دا ٹائم کہ وہ ہوگا. موسٹ آف دا ٹائم, ریمبر ہم نے یہ نہیں کہا کہ آل دا ٹائم, موسٹ آف دا ٹائم چانسز ہے کہ وہ قیاسی مؤنث کی کیٹیگری میں وہ چیز آئے گی. الف ممدودہ, اس کی شرط ہے الوان اینڈ عیوب, الوان و عیوب. الف ممدودہ سے اینڈ ہو رہی ہو پلس وہ یا تو ڈیفیکٹ ہو یا وہ کلر ہو.
फिर अलिफ मकसूरा से एंड हो रही हो, लेकिन शर्त क्या है कि वो सिफत हो। तो ये दोनों चीजें भी इसके साथ आप बहुत अच्छी तरह से, आपको याद करने का काम ये। फिर थर्ड कैटेगरी, उस यहाँ भी अगर पास नहीं होता तो देखते हैं कि अहले अरब उसे मुअन्नस कहते हैं कि नहीं। अगर अहले अरब मुअन्नस की तरह डील नहीं करते तो अब हम उस लफ्ज को मुजक्कर की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास कंप्लीट। किसी को कोई चीज पूछनी है जो हमने पढ़ाया है सिर्फ उसमें से पूछे, बाहर से कुछ नहीं पूछे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ मैम लीजिए। ये जो जी मैम ये जो अलिफ मकसूरा आपने बताया, इसका कोई और नाम भी है? नहीं, अलिफ मकसूरा का कोई और नाम नहीं है। जी मैम। इसको आप अलिफ अलिफिया कह लीजिए, क्या कहेंगी? अलिफ मकसूरा ही याद हो जाएगा। अब आपको अलिफ, अब आप अलिफ हमजा पे नहीं जाएंगी, अब आप अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा ही याद कर लें। इसीलिए मैंने समझा दिया कि अलिफ ममदूदा का मतलब है मद वाली अलिफ, ठीक है। ये अलिफ हमेशा मद के साथ आएगी, इसलिए इसे कहते हैं। अब मद के साथ क्यों आती है? जब भी मद असली के बाद हमजा, जिन्होंने तजवीद की है और मद का चैप्टर किया है तो उनको पता है कि मद असली के बाद अगर हमजा आए या सुकून आ जाए तो मद लग जाती है। तो चले, वो दूसरी कंडीशन भी मैंने बोल ही दी यहाँ पे। तो जी मैम, ये चीज क्लियर है, अलिफ ममदूदा जो है ना ये क्लियर है, मद का टॉपिक भी क्लियर है, लेकिन थोड़ी सी अलिफ मकसूरा जो है ना वो मुझे कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। कंफ्यूजन, आपने कभी सफर नहीं किया क्या? आपने कभी नमाज कसर नहीं की क्या? जी जी नमाज मैम, तो उससे सब। कसर की है ना, नमाज 4 की 2 करती है ना आप। जी जी हाँ, तो यहाँ देखें ये अलिफ आधा हो गया ना। ये अलिफ जो आपको या के ऊपर दिख रहा है, ये कसर हो गया जी कि नहीं हो गया? जी जी मैम। हो गया। अब याद रहेगा। जी आप नमाज कसर करती हैं, यहाँ पे अलिफ कसर हो गई, तो अलिफ, ये अलिफ बन गई अलिफ मकसूरा। अलिफ कसर की हुई अलिफ छोटी। अब ये छोटी सी नन्ही मुन्नी अलिफ थी, बड़ा वाला अलिफ तो जमीन पे खड़ा हो जाता है, लेकिन छोटा वाला अलिफ जो है वो जमीन पे नहीं खड़ा हो पाता, वो अपनी चेयर ले के साथ आता है। ये चेयर होती है, कुर्सी होती है या की। तो इसके साथ अलिफ मकसूरा के साथ आपको या की शक्ल दिखाई देगी, तो इसलिए बहुत आसानी से याद हो जाता है। और उसकी एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ एग्जाम्पल भी अपने जहन, जब भी कोई चीज करें तो एग्जाम्पल याद रखें। हुस्ना, ये हुस्ना क्या है? जी एडजेक्टिव है और एंड हो रहा है अलिफ मकसूरा पे। पहले क्या हमको दिखाई देगा कि अलिफ मकसूरा, तब हम, हमारे दिमाग में हिट होगा कि हाँ, ये अलामती मुअन्नस में यानी समाई मुअन्नस की एक अलामत है। फिर हमको क्रॉस चेक करना है कि क्या ये सिफत है। हाँ, हुस्न तो एक सिफत है ना, खूबसूरती या अच्छाई तो एक सिफत है। तो ये हो जाएगी फिर हमारी कयासी मुअन्नस में, बिकॉज ऑफ अलिफ मकसूरा। ठीक है। जी मैम। अब आपका नाम क्या है? शोएबा, मैम शोएबा मंजूर। शुएबा। जी जी जी। तो बस इसे नमाज कसर करने से याद कर लें, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा मद से याद कर लें और अलिफ मकसूरा नमाज कसर करने से याद कर लें। गोलता तो है ही अपनी स्पेशल सी। तो बस ये 3 अलामतें अगर आपको दिखे तो आप सोच, ये 3 अलामतें आपको सोचने पे मजबूर करेंगी। गोलता तो ज्यादा नहीं सोचना है, लेकिन बाकी दोनों देखते साथ आप जंप नहीं कर जाएंगी कि ये जो है फेमिनिन होगा। उसके बाद ये 2 शराइत भी पूरी होनी चाहिए, कलर्स एंड डिफेक्ट्स की, और यहाँ पे एडजेक्टिव यानी सिफत। समझ में आपको आ गया है? देखिए, कोई भी चीज सिर्फ समझ में आने से चीजें रिटेन नहीं होती। आज कोशिश करें कि आज ही इनको याद कर लें, नहीं तो कल तक जरूर याद कर लें। और मैं पोल करूंगी, आप उसमें लिख दें कि पीडीएफ से हमने नोट्स भी बना लिए और पीडीएफ की सारी चीजें हमने याद भी कर ली। मेरा अभी पोल जाएगा और आप ये कर लें, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते समाई मुअन्नस की कैटेगरी भी पूरी हो जाएगी। उस दिन मैं आपको, हो सकता है कि मैं बीच में ही आपको ग्रुप में मैं भेज दूं, समाई मुअन्नस की लिस्ट में पहले याद करा दूं। याद आप पहले कर लेंगी, समझा मैं क्लास में इंशाल्लाह ताला दूंगी अभी। लेकिन अभी 2-3 दिन तो समाई मुअन्नस की लिस्ट नहीं आएगी, इस 2-3 दिन में आपको ये चीजें याद करनी है। चलिए क्लास खत्म कर लेते हैं और दुआ पढ़ते हैं। और तो किसी का कोई सवाल नहीं है?
अगर कोई हो तो जैसे शोएबा ने पूछा पूछे, तो मैं कुछ हिंट दे दूंगी आपको भी कैसे याद करनी है। याद रखें कि हर चीज आप याद करेंगे, हर पॉइंट याद करेंगे, उस सब के साथ एक एक मिसाल जरूर याद करेंगे। खदराऊ याद कर लें या सफराऊ याद कर लें, जैसे उन्होंने कहा कि सूरह बकरा में ही आप पढ़ती होंगी। सफराऊ इसका मतलब होता है पीली, इसको आप कभी पीला नहीं कह तर्जुमा कर सकती, पीली का ही तर्जुमा करेंगे। तो एक एग्जाम्पल जो भी आपको सबसे अच्छा लगे याद रखें, अबियत नहीं याद करेंगी, ये यहाँ लिखा हुआ है मैस्कुलिन, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स याद करेंगी और हर पॉइंट हकीकी के साथ उम्मुन याद कर लें, और समाई मुअन्नस बोलता के साथ जन्नतुन याद कर लें, साथ में दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल करें। फिर अलिफ ममदूदा के साथ आप याद कर लें सफराऊ, और अलिफ मकसूरा के साथ याद कर लें हुस्ना। तो सिर्फ यही 3 एग्जाम्पल पूरी क्लास याद करेगी, जन्नतुन, सफराऊ और हुस्ना, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल सब लोग, कोई इधर उधर अब खदराऊ और दूसरे एग्जाम्पल आप लेके नहीं आएंगी, जन्नतुन, सफराऊ और हुस्ना, बस ये 3 एग्जाम्पल याद करने हैं, 3 पॉइंट्स याद करने हैं, हर पॉइंट के साथ कंडीशन भी जो है वो याद करनी है। खत्म करें क्लास या कोई सवाल? चलें, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।